याद है किसी को लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? Okay, so in last lecture we have started with this unit 3, that is data pre-processing, and I have explained you why data pre-processing is important. Then we have seen what is quality of data and on what different parameters data quality is measured. Okay, so this accuracy, completeness, consistency, believability and interpretability, these are some of the parameters on the basis of which data quality is measured. Then we have started with this major task in data pre-processing. So in these major tasks we have basically four tasks: data cleaning, data integration, data reduction and data transformation, right? So first process we have already started, that is data cleaning. Okay, and for data cleaning we have three sub points, you can say, or three different aspects from which we are going to look at this data cleaning process. Okay, so first is different ways of handling missing values. Then second is data smoothing techniques, and third is we are going to look at this data cleaning as an entire process. Okay, so we have already started with handling missing values. So in missing values we have seen various techniques how to handle missing values, right? So in that first technique we have seen, that is ignore the tuple or remove the tuple from the data set. Then we have seen fill the missing values manually. Okay, so collect data manually and fill whatever missing values you have in your data. Then third technique we have seen, that is use global constants. So you decide any global constant like 0, -1 or unknown for that missing value, and you replace all those missing value with some global constant. Okay, then next we have seen use measure of central tendency. So for that particular column we can calculate mean, mode or median, and then you can replace that missing value either with mean or mode or median, which is suitable for that data, you can replace it, right? And then we have seen central tendency of the same class. Okay, so first you need to identify class of that missing value and then calculate mean, mode or median of that same class and replace your missing value with mean or median of the class. Okay, and last thing we have seen, use most probable value. Okay, so how to find this most probable value using some advanced techniques like regression or Bayesian inference or decision tree induction. These are some of the advanced methods which can be used to predict value or predict that missing value, and then you can replace that missing cell, missing value using that predicted value. Okay, so these all things we have seen in the last lecture, that is how to handle missing values. Now today we'll start with data smoothing techniques. Okay, how to smooth the data and why it is necessary. Okay, so as we know, data is collected from various sources, right? जो भी data हम collect करते हैं वो अलग अलग sources से collect किया होता है, and in that data noise is present. Okay, so what is noise in the data? See here, noise is a random error or variance in a measured variable. Okay, so uh, here in this diagram also you can see
This is your, this red line that you can see in this graph is the true function, or we want all our values in the data set to lie very close to this red line. Okay, because this is the function. But if you see these blue crosses on this, these are the actual data points. Okay, और ये जो actual data points है, ये कुछ कुछ data points तो ये line से बहुत दूर है, right? They are scattered around the line, and such data points are called as noisy data. If your data is scattered around the true function, okay, or if your data points are far from the true function, such data is called as noisy data. Okay, and on noisy data, if you apply any data mining algorithm, it will not give you correct results, or it will contain some errors, or accuracy will be low. Like that, issues will happen. Okay, so हमें क्या करना है कि ये जो डेटा में नॉइज है वो रिड्यूस करना है, एंड रिड्यूसिंग नॉइज इज कॉल्ड एज स्मूथिंग. मतलब डेटा को हमें स्मूथ करना है, एंड अगेन फॉर स्मूथिंग वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स. ओके, लेकिन उसके पहले आपको पता चलना चाहिए कि डेटा नॉइजी है या नहीं है. देन ओनली वी कैन अप्लाई स्मूथिंग टेक्निक. अगर आपका डेटा में कुछ नॉइजी नहीं है, ऑलरेडी योर डेटा इज स्मूथ, देन देर इज नो नीड टू अप्लाई एनी स्मूथिंग टेक्निक. ओके, तो ये सबसे पहला टास्क क्या रहेगा कि आइडेंटिफाई करना डेटा में नॉइज है या नहीं. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई दैट? So to identify that we have various statistical description techniques. Okay, so ये जो description techniques है, ये हमने प्रीवियस यूनिट में देखे, सेकेंड यूनिट में देखे थे. जैसे जो डेटा विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स है वो आप यूज कर सकते हो. जैसे यहाँ पे जैसे हमने विजुअलाइज किया है डेटा, कैसे विजुअलाइज किया है? यूजिंग स्कैटर प्लॉट. ये है स्कैटर प्लॉट, मतलब डेटा को जस्ट हमने प्लॉट किया है. You can plot a box plot. Okay, you can use description technique like scatter plot. Okay, तो जब आप विजुअलाइज करते हो डेटा, तो आपको समझ में आता है कि आपके डेटा में नॉइज है या नहीं है, आउटलायर्स है या नहीं है. ओके, दैट थिंग यू गेट टू नो व्हेन यू विजुअलाइज द डेटा. ओके, सो वंस यू विजुअलाइज दैट डेटा, आपको पता चलता है कि आपके डेटा में नॉइज है या नहीं है. Okay, and once you get to know that there is noise in the data, you have to apply some data smoothing technique on that data to smooth it. ठीक है, and to smooth out data and remove noise from that data, we have various smoothing techniques. Okay, and those smoothing techniques are listed here. First is binding, second is regression, and third is outlier analysis. समझ में आया व्हाट इज नॉइजी डेटा एंड हाउ टू आइडेंटिफाई? यस. Yes, ma'am. ओके, सो वी विल सी दिस बाइंडिंग टेक्निक इन डिटेल. ओके, तो आपको समझ में आएगा कि नॉइज क्या होता है और डेटा को स्मूथ कैसे करते हैं. ठीक है, सो बाइंडिंग विल सी इन डिटेल. रिग्रेशन एंड आउटलायर एनालिसिस आर the topics which we are going to see in further units. So here we will see only binding in detail. Okay, so let us start. See, binding is data smoothing technique that helps reduce noise and improve the quality of data. Okay, so we have seen why quality data is important, because to get knowledgeable information, to get valuable insights from the data quality is important, right? And when there is noise present in your data, you cannot get valuable insights. So we can apply data smoothing techniques, and after applying data smoothing technique, you will get improve quality which is improved. Okay, so it can, data smoothing technique can improve quality of data.
Okay, it will reduce noise and improve quality of data. So how the technique works is it will group a sorted data set into a number of beans or buckets. This binding technique works like this. It will group sorted data into number of beans or buckets and then smoothing the data values within each bean. Okay, so first it will form groups of data. Okay, and on each group smoothing will be performed. Okay, now we have different types of binding techniques. बाइंडिंग का बेसिक क्या है, जो भी आपके पास डेटा है, first of all we have to sort that data, and that sorted data set we will form groups. Okay, and on each group we will apply some binding technique. Okay, now we have three types of binding techniques. First is smoothing by bean means, smoothing by bean medians, and smoothing by bean boundaries. Okay, so here the key word to understand is what is bean. Okay, so bean is nothing but the group of data or subset of your data. So whatever data you have, we are going to break down that data into smaller groups, and each group is called as bean. आया समझ में? Yes. नो मैम, एक बार और समझा दीजिए। ओके, जैसे आपके हमारे पास लेट से डेटा है जिसमें 100 पॉइंट्स है। ओके, तो ये 100 को क्या करेंगे हम 10-10 के अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 10 ग्रुप्स बन जाएंगे बिकॉज वी हैव 100 पॉइंट्स. So this each group of 10 point is called as a bean. ठीक है, ये एक बीन होगा, अलग 10 पॉइंट का दूसरा बीन होगा, ये थर्ड 10 पॉइंट का एक बीन होगा। ऐसे हम क्या करेंगे, हमारे पूरे डेटा सेट को 10 बीन्स में डिवाइड करेंगे। बीन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हाट इज बीन? यस सरिता। मैम, जिसमें डेटा स्टोर रहता है वही। जो भी आपके पास डेटा है, जितना भी डेटा है आपके पास, हम क्या करने वाले उसको, उस डेटा को डिवाइड करने वाले हैं स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में। ठीक है, तो हर एक ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, बीन। अभी मैंने स्मूथिंग नहीं सीखा है, आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द बीन। बीन क्या होती है? बीन इज अ सबसेट ऑफ योर डेटा सेट। तो जो भी डेटा है आपके पास उनको हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे ग्रुप में, और ईच ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एक बीन। ओके, ओके मैम। so and then once you divide your data into different beans, हर एक बीन पे हम स्मूथिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे टू स्मूथ आउट द डेटा। ओके, नाउ क्या करना है, yes we have an example, so it will be clear to you how to apply smoothing technique. Okay, so let's say we have this data set of some prices. ओके, तो ये डेटा सेट है हमारे पास, इस पे क्या करना है, हमें इसको स्मूथ करना है। सो स्मूथ दिस डेटा यूजिंग डिफरेंट बाइंडिंग टेक्निक्स विथ बीन साइज ऑफ 3। ओके, तो बीन का साइज दिया है हमें यहाँ पे 3, तो साइज ऑफ 3 कंसिडर करके हमें ये डेटा स्मूथ करना है। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सॉर्ट द डेटा। ठीक है, लेकिन हमारा ये डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो नो नीड टू अप्लाई एनीथिंग ऑन इट, सो द डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड। सो फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। देन सेकंड, पार्टीशन इनटू बीन्स। नाउ वी हैव टू पार्टीशन दिस डेटा इनटू बीन्स। ओके, बीन का साइज क्या है, 3, तो सबसे पहले बीन में क्या एलिमेंट्स आएंगे, यस बता दो आप। ये लेट्स से फोर हमारा है एट बीन थ्री 1, 4, 8
and 50, right? This is 15, bean 1. Then bean 2 में क्या एलिमेंट्स आएंगे? 21, 21, 20, 21 24, and 24, right? bean 2. Then bean 3 में 25, 25, 28, 20, 30. 30, right? सी ये आपको स्मूथिंग टेक्निक समझ में आना चाहिए। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमने इतना छोटा डेटा सेट लिया है, लेकिन कभी भी हम एग्जांपल के लिए जो डेटा सेट देखते हैं वो रियल वर्ल्ड से बहुत अलग होता है, ये आप याद रखना। बिकॉज रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स आर ह्यूज, इट कैन हैव 100,000 ऑफ डेटा, ओके, लेकिन उतना डेटा हम यहाँ पे नहीं ले सकते। सो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये छोटे छोटे डेटा सेट पे डेटा सेट लेके उस पे ये प्रोसेस ट्राई करते हैं ताकि आपको भी समझ सके, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमारा डेटा मल्टीपल बीन्स में डिवाइड किया, ठीक है। सो वी हैव फॉर्म 3 बीन्स आउट ऑफ दिस डेटा। नाउ ऑन ईच बीन वी कैन अप्लाई द स्मूथिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास स्मूथिंग टेक्निक्स है, इनमें से कोई भी आप एक टेक्निक चूज कर सकते हो और फिर हर एक बीन को आपको हर एक बीन में जो डेटा है उस पे स्मूथिंग अप्लाई करना है, ठीक है। सो लेट्स से हमने चूज किया फर्स्ट टेक्निक, स्मूथिंग बाय बीन मीन्स, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, हम हर एक बीन का मीन निकालेंगे और जो भी मीन आएगा उससे ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, ठीक है। जैसे बीन 1 का मीन क्या आएगा, मीन कैसे निकालते हैं, बीन 1 का मीन क्या आएगा, यस एनीवन कैन टेल, कैसे निकालते मीन? पहले वाले बीन के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। 3, राइट। सो 4 प्लस 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका मीन क्या आएगा, 15 प्लस 4 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इसका आएगा 9, ओके। सेकंड बीन का मीन क्या आएगा, 21 प्लस 21 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 3, इसका आएगा 22। और थर्ड बीन का मीन आएगा 25 प्लस 28 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 29, okay. So once you calculate the mean, now your updated bean will become 4 को रिप्लेस करना है 9 से, ये सारे एलिमेंट्स को 9 से रिप्लेस करना है, ठीक है। सेकेंड बिन के सारे एलिमेंट्स को 22 से रिप्लेस करना है एंड बीन 3 के सारे एलिमेंट्स को 29 से रिप्लेस करना है, ओके। सो दिस इज योर स्मूथ डेटा बाय यूजिंग smoothing by bean means, okay. Using first technique we have smooth our data and data after smoothing is like this, okay। आया समझ में? यस। कैसे पता चलेगा कि ये स्मूथ हो गया और कहाँ काम आता है ये, यूज कहाँ होता है इसका? ओके, हाँ, ये जो मैंने आपको ग्राफ बताया था ये क्या है, नॉइजी डेटा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, जो भी डेटा आपको दिया है डेटा माइनिंग के लिए, उसमें आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है नॉइज है या नहीं, राइट। नॉइज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे प्लॉट करके विजुअलाइज करके आपको पता चलता है। जैसे ये कुछ डेटा है जिसको हमने विजुअलाइज किया तो हमें पता चलता है कि ये जो लाइन है रेड लाइन, दिस इज अवर ट्रू फंक्शन। और हमें क्या चाहिए, ट्रू फंक्शन मतलब हमें सारे वैल्यूज हमारे डेटा में ऐसे चाहिए जो इस रेड लाइन पे हो या उसके बहुत क्लोज हो। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो ये पॉइंट्स बहुत दूर जा रहे हैं रेड लाइन से, राइट। तो अगर ऐसे टाइप का डेटा है तो
हमें क्या करना पड़ता है उसके ऊपर, स्मूथिंग, राइट। तो जब स्मूथिंग करोगे आप तो ये सारा डेटा ये लाइन के ऊपर या लाइन के बहुत नजदीक आ जाएगा, एंड दैट डेटा is a quality data, right? Smooth data is the quality data, and when you use uh, that smooth data for any data mining technique, it will give you knowledgeable information. जो भी आपके प्रिडिक्शन होंगे, जो भी नॉलेज आप एक्सट्रैक्ट करोगे वो यूजफुल होगा। अगर एज इट इज नॉइजी डेटा पे आपने कुछ डेटा माइनिंग का एल्गोरिदम अप्लाई किया तो जो आपको नॉलेज मिलेगा वो मे बी समटाइम्स रॉन्ग हो सकता है, बिकॉज यू हैव यूज नॉइजी डेटा. Noisy data is not good quality data, and for data mining you should always prefer good quality data. तो जब आप स्मूथिंग करते हो तो आपके डेटा का क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है, राइट? जैसे हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब आप बाइंडिंग अप्लाई करते हो तो इट विल improve quality of your data. And why do we need quality of the data? ये हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था कि what is quality of data and why do we need good quality of data, right? So जब आप स्मूथिंग टेक्निक अप्लाई करते हो तो आपका डेटा एक्यूरेट हो जाता है, आपका डेटा कंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इन दैट वे इट इज इम्प्रूविंग द डेटा, और जब आपका डेटा की क्वालिटी अच्छी है तो उसके ऊपर जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, जो भी इंसाइट्स आपको मिलेंगे वो भी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे, ठीक है, वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगे। अगर आप स्मूथिंग नहीं करते हो, अगर आप मिसिंग वैल्यूज रिप्लेस नहीं करते हो तो आपके डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस पर आपको रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। आया समझ में? यस मैम। मैम इसको प्लॉट कर सकते हैं क्या एग्जाम्पल को? इस एग्जाम्पल को यस मैम। इसको प्लॉट करने के लिए तो मतलब अब, हाँ, ऐसे ही रफ सा। ओके, रफ में हम प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन वो प्लॉट करके ये बहुत छोटा डेटा है तो आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको, दैट इज वाई आई एम एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि पहले आपका डेटा लेट्स से ऐसे स्कैटर्ड है, जब आप स्मूथिंग करोगे तो आपका जो डेटा होगा, ये जो आपको ब्लू कलर के क्रॉस दिख रहे हैं ना इस डेटा पे, ये वो रेड हमारा लाइन के पास एक्चुअल आ डेटा जाएगा है, मैम। राइट। जब आप स्मूथिंग करोगे तो ये सारा डेटा ये रेड लाइन के पास में आ जाएगा। आया समझ में? यस मैम। हाँ, ये करने के लिए हमें मतलब बहुत टाइम लगेगा ये प्लॉट करने के लिए, जो मतलब यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, आई विल ड्रॉ। और इसके लिए एक तो हमें और एक पैरामीटर लगेगा कि एक्स एक्सिस पे ये सिर्फ हमने एक ही फीचर, एक ही कॉलम कंसिडर करके स्मूथिंग किया है ना। डेटा में तो हमारे वैसे मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, तो कोई भी दो पैरामीटर कंसिडर करके आप प्लॉट कर सकते हो डेटा, और फिर आपको समझ में आएगा कि डेटा में नॉइज है या नहीं, और स्मूथिंग के बाद अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यू विल फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। ओके मैम। इसमें कुछ डाउट है बाइंडिंग में? नो मैम। ओके, सिंपली हमने क्या किया, बीन में डिवाइड किया और उसका एक तो मीन निकालो या मीडियन या बाउंड्री, ओके, एक सिर्फ हमने यहाँ पे बीन देखा है, अभी हमें मीडियन और बाउंड्रीज देखना है, ठीक है। तो ये मीन से हमने क्या किया, हर एक बीन का मीन निकाला और सारे वैल्यूज उस मीन से रिप्लेस कर दिए, सो दिस डेटा इज कॉल्ड एज स्मूथ डेटा। Okay, now similarly you can, instead of mean you can calculate median. Okay, median कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद है आपको? हाउ टू कैलकुलेट मीडियन? क्या होता है मीडियन? एलिमेंट्स सॉर्टेड होने चाहिए मैम। हाँ, सॉर्टेड होने चाहिए, और इवन रहा तो अलग होगा, और रहा तो जो मिड में रहेगा वही मीडियन हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सारे बीन में क्या है,
ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो जो मिडल एलिमेंट होगा वो क्या होगा हमारा मीडियन. सो फॉर फर्स्ट बीन मीडियन विल बी 8, फॉर सेकेंड बीन मीडियन विल बी 21, फॉर थर्ड बीन मीडियन विल बी 28. तो सिंपली हमें क्या करना है, ये सारे एलिमेंट्स जो भी मीडियन है उससे रिप्लेस करने हैं. मतलब ये रिप्लेस होंगे 8 से, सेकेंड बीन के एलिमेंट रिप्लेस होंगे 21 से, और थर्ड बीन के एलिमेंट्स रिप्लेस होंगे 28 से. ओके, एंड दिस इज योर स्मूथ डेटा, and this is noisy data. Got it? Simple था smoothing by medians. Any doubt? No doubts? No, ma'am. Okay. Now third we'll see smoothing by bean boundaries. Okay. So इसमें क्या है? Identify minimum and maximum values for each bean and replace each value with the closest boundary value. Okay. So हर एक बीन में आपको क्या करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करना है और कोई भी वैल्यू रिप्लेस करना है आपको उसके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू से जो भी उसके लिए क्लोजेस्ट हो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बीन 1 का मैक्सिमम मिनिमम है 4, मैक्सिमम है 15. ओके, तो हम क्या करेंगे, 4 को रिप्लेस करेंगे 4 से, मीन्स 4 विल बी एज इट इज, राइट. 8 जो भी वैल्यू कंसिडर कर रहे हो तो आप क्या काउंट करोगे, तो ये काउंट करोगे कि ये मीन से कितनी दूर है और मैक्सिमम वैल्यू से कितनी दूर है. ठीक है, तो जिसके वो पास आ रही है उस वैल्यू से रिप्लेस करोगे. ठीक है, तो ये 8 तो आपका मीडियन है, तो ये दोनों से भी सेम डिस्टेंस पे होगा, तो इसको अगर आप या तो फिर आप 4 से रिप्लेस कर सकते हो या फिर 15 से कर सकते हो. ठीक है, तो इसको हम 4 से रिप्लेस करेंगे 8 को और मैक्सिमम वैल्यू विल बी एज इट इज. सिमिलरली ये बीन तो एज इट इज रहेगा हमारा, क्योंकि इसमें मिनिमम है 21, मैक्सिमम है 24. ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम सेम रहेगा. उसके बाद ये है 21, तो 21 को आप एक तो 24 से रिप्लेस कर सकते हो या फिर 21 से. ठीक है, तो वी आर कीपिंग इट एज इट इज. अगेन इन बीन 3 मिनिमम इज 25, मैक्सिमम इज 34. सो हमें क्या करना है, मिनिमम मैक्सिमम एज इट इज, 28 को एज इट इज मीडियन, तो आप इसको 25 से रिप्लेस कर सकते हो या फिर 34 से भी कर सकते हो. ठीक है, इसमें 3 ही एलिमेंट थे, तो अगर आपको इसे समझ में नहीं आया तो हम और एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से आपके बीन में 5 एलिमेंट्स हैं. ओके, जैसे यहाँ पे अगर आपको बीन साइज बताया गया है 5, तो आपके फर्स्ट बिन में एलिमेंट्स आएंगे 4, 8, 15, 21 और 21. ठीक है, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 4, मैक्सिमम है 21. ओके, तो आफ्टर स्मूदिंग आपका डेटा कैसे दिखेगा, 4 और 21 तो एज इट इज रहेंगे, देन 8 इज क्लोज टू 4, राइट. तो 8 विल बी रिप्लेस्ड बाय 4. अगेन 15 मीडियन है, तो 15 को एक तो आप 4 से रिप्लेस कर सकते हो या 21 से कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम रिप्लेस करते हैं 21 से. नाउ दिस 21 is closer to this 21, but it is the value is 21 itself. So 21 as it is रहेगा और maximum value as it is. ठीक है, तो ये था आपका noisy and this is smooth. आया समझ में, how to smooth using bean Yes. boundaries. Okay, so this is
अबाउट द बाइंडिंग टेक्निक। ओके, तो बाइंडिंग टेक्निक में हमने स्मूथिंग किया डेटा का यूजिंग मीन, मीडियन या बाउंड्रीज। तो ये टेक्निक जब भी आप यूज करते हो तो जो डेटा मिलता है आपको वो स्मूथ डेटा ही होता है, क्योंकि हम सेंट्रल टेंडेंसी से उसको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉट एवर डेटा यू विल गेट दैट विल बी स्मूथ। ये स्टैंडर्ड टेक्निक्स है। Now, other techniques used for smoothing are regression and outlier analysis. ठीक है, सो these are little bit advanced techniques, so हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले, लेकिन I'll just explain you in brief. रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो भी नॉइजी डेटा है, लेट्स से ये डेटा अगर आप कंसिडर करते हो, तो लेट्स से आपने ये पॉइंट कंसिडर किया, इसको आपको स्मूथ करना है। तो स्मूथ करना है मतलब यूजिंग रिग्रेशन आप क्या करोगे, जो भी आपका ये जो ट्रू फंक्शन है, ये कुछ फंक्शन होता है लाइक फॉर्मूला, इसका कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप ये जो डेटा पॉइंट है इसका वैल्यू प्रेडिक्ट करोगे। यूजिंग रिग्रेशन यू विल प्रेडिक्ट वैल्यू फॉर नॉइजी डेटा पॉइंट्स, और जो प्रिडिक्शन के बाद आपको वैल्यू मिलेगा वो इसके नियर बाय होगा। दैट मीन्स यू आर स्मूथिंग द डेटा यूजिंग रिग्रेशन। Okay, regression means you are fitting some line, you are calculating some equation for the true function, and then based on the true function you are predicting the value, और जो predicted values होते हैं after regression, those are the smooth values. Okay, we have various types of regression like linear regression, multiple linear regression. So this linear regression work on two attribute, or if you have multiple or more than two attributes in your data set, you can use multiple linear regression. Okay, these are advanced techniques, so that don't bother about this, इसका ज़्यादा टेंशन मत लो। इसको आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं सीखना है, जब आगे अगर डेटा माइनिंग में आपके सिलेबस में है तो हम ये डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो आप इतना समझ लो कि रिग्रेशन एक ऐसा टेक्निक है जो नॉइजी डेटा की स्मूथ वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, तो वो जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है वो होती है स्मूथ वैल्यू, और ऐसे ही जितना भी नॉइजी डेटा है आपके डेटा में, यूजिंग रिग्रेशन यू कैन प्रिडिक्ट एंड यू कैन स्मूथ द डेटा। ओके, नाउ दिस आउटलायर एनालिसिस, इसके पहले भी हमने 2-3 बार देखा है, मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आउटलायर एनालिसिस क्या होता है कि जो आउटलायर्स होते हैं आपके डेटा में, दे आर नथिंग बट द नॉइज। ओके, तो techniques like clustering can be used to find outliers in your data. Outliers are nothing but the unusual data in your data set. Okay, तो ऐसा unusual data आप कुछ एडवांस टेक्निक जैसे क्लस्टरिंग यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो, एंड देन यू कैन हैंडल दैट आउटलायर डेटा। ठीक है, तो ये आउटलायर डेटा कैसे हैंडल कर सकते हैं, एक तो यू कैन रिमूव द आउटलायर्स। लेकिन मान लो आपके डेटा में बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में आउटलायर है, तो आप टू प्रिवेंट डेटा लॉस यू कैन नॉट रिमूव इट। ठीक है, अगर आप रिमूव कर दोगे तो आपका डेटा लॉस हो सकता है, तो आपको रिमूव नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो जितने भी डेटा पॉइंट्स है उनका मीन या मीडियन निकाल कर रिप्लेस विथ मीन और मीडियन। जो भी आउटलायर से वो वैल्यू आप मीन और मीडियन से रिप्लेस कर सकते हो, या फिर यू कैन कैप द आउटलायर। कैपिंग मीन्स आप कुछ तो उसको लिमिट सेट कर सकते हो कि जो भी पॉइंट्स इस लिमिट से आगे हैं उनको ये लिमिट पे लाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके डेटा सेट में एक कॉलम है एज। ओके, और एज में वैल्यूज है जैसे 70, 71, 60, देन 15, 40, 30, ये वैल्यूज है, और एक वैल्यू है 150।
राइट। तो ये 150 क्या हो गया, आउटलायर। ओके, जस्ट ऐसे डेटा देख के भी आपको समझ में आ रहा है कि 150 इज द वैल्यू विच इज very unusual for age and which is very different than the value here in this column। ठीक है, तो ये 150 ऐसे वैल्यूज को आप क्या करोगे कि आपने कुछ तो एक लिमिट सेट कर रखा है, जैसे 90। ओके, तो जितने भी वैल्यूज ऐसे हैं आपके डेटा में जो लिमिट के बाहर है या आउटलायर है, उनको आप रिप्लेस कर दोगे 90 से। ठीक है, दिस टेक्निक यू कैन यूज फॉर आउटलायर्स। So once you remove outliers in your data becomes smooth. That means quality will be improved, and then you can use that data for data mining to get useful insights. Clear? Any doubt in this? नो मैम। Okay. So we have completed two approaches of data cleaning, that is handling missing values and smoothing the data. Okay. Now third, we are going to see data cleaning as a process. Okay, so how that data cleaning actually work as an entire process on any type of data set, that we will see now. Okay, so the first step in data cleaning is discrepancy detection. This is the first step in data cleaning, and this discrepancy can arise from various factors। जैसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो यूजिंग सम सर्वे। ठीक है, ऐसे बहुत बार फॉर्म्स भी आते हैं सर्वे के, कि रिसर्च पर्पस के लिए सर्वे किया जा रहा है तो ये फॉर्म फिल करो। आपने देखे कभी ऐसे फॉर्म्स? स्टूडेंट्स के ग्रुप्स पे भी आते हैं सर्वे फॉर्म्स, जिसमें आपको यस आपका मैम। आपका डेटा देना होता है, राइट। तो जब आप ऐसा डेटा फिल करते हो तो कभी कभी पर्पसफुली आप कुछ डेटा नहीं देना चाहते तो वहां पे आप ब्लैंक रखते हो। ठीक है, कभी बाय मिस्टेक डेटा फिल नहीं किया जाता है, कुछ फील्ड्स एम्प्टी रहते रह जाते हैं। ठीक है, तो वो जो डेटा होता है उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज होती है। ठीक है, सो दिस डिस्क्रिपेंसीज अराइज फ्रॉम ह्यूमन एरर्स, मे बी फ्रॉम सिस्टम एरर्स, maybe because of inconsistent data representation or some integration issues। Okay, these are the reasons for discrepancy in the data। Okay, and the first step of data cleaning is you have to detect those discrepancies। Okay, discrepancies means errors in the data, so that error can be missing value, that error मिसिंग वैल्यू मीन्स जो भी डेटा है उसमें कुछ डेटा प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट डेटा मीन्स जैसे मैंने अभी आपको एज का बताया। ठीक है, तो डिपेंड ऑन योर सर्वे, मतलब आप कॉलेज स्टूडेंट का कुछ सर्वे कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें आपकी एज की वैल्यूज होनी चाहिए, जैसे लेट्स से 17 to 35 या 17 to 30। लेकिन आपके डेटा किसी ने फील करते हुए 17 की जगह पे 7 डाल दिया, या 30 की जगह पे सिर्फ 3 डाल दिया और सबमिट कर दिया, तो ये क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट डेटा। मतलब ये डेटा का लिमिट आपके डेटा के लिए मैच ही नहीं हो रहा है, राइट, बिकॉज यू आर एनालाइजिंग डेटा ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। तो कॉलेज में तो स्टूडेंट 7 साल का नहीं जा सकता या 3 साल का नहीं जा सकता, तो ये क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट डेटा। ठीक है, so there is a possibility, there is always possibility of errors। Okay, so maybe human errors, maybe because of human errors some inconsistencies happen। Okay, या फिर आपने फॉर्म बनाते हुए ही आपसे ऐसी गलती हुई कि आपने उस फील्ड में ऐसा लिमिट सेट कर दिया जिसकी वजह से लोगों को 17 या 30 भी एज डालना है तो वो डाल नहीं पा रहे। ठीक है, तो ऐसे एरर्स हो सकते हैं, एंड ड्यू टू सच एरर्स inconsistent data exist in the data set। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप कुछ डेटा एनालिसिस करोगे, डेटा माइनिंग करोगे,
तो आपको डेटा चेक करना है कि डेटा में कुछ डिस्क्रिपेंसीज है या नहीं. यू हैव टू डिटेक्ट द डिस्क्रिपेंसीज इन द डेटा. ओके. और जो भी डिस्क्रिपेंसीज है आपके डेटा में उसको आपको करेक्ट करना है यूजिंग डेटा क्लीनिंग. Okay, some processes are there using which you can correct the data. Then second thing is inconsistent use of codes. You have to find inconsistent codes in your data. जैसे लेट से आप कुछ वेदर का डेटा कलेक्ट कर रहे हो जिसमें टेम्परेचर का एक कॉलम है. ठीक है. उसमें कुछ वैल्यूज है डिग्री सेल्सियस में, कुछ वैल्यूज है फ़ारेनहीट में. राइट. तो ये क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट कोड. या फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे आपके डेटा में सब्जेक्ट कोड्स स्टोर है. ठीक है. और कुछ कोड्स है ऐसे BCA 101, BCA 102, और कुछ कोड डायरेक्टली ऐसे है 104, 110. तो ये क्या हुआ, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है. ठीक है. तो ऑन सच डेटा यू कैन नॉट वर्क. फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग दैट डेटा into consistent format and then you can apply data mining on it. So the second step in data cleaning should be make your data consistent. Okay. Ensure uniformity in the data. Okay. To avoid the errors. And why we are doing all these things? To improve quality of your data. The only purpose of data cleaning is to improve quality of the data. Okay. Then third step can be rules for the data. Okay. So you should set some rules for the data, like you can set some rules like attribute यूनिक डेटा. जैसे आपके इसमें अगर स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का डेटा है और उसमें आईडी है या रोल नंबर है, तो आपको इस पे इसके ऊपर कुछ रूल्स लगेंगे कि आईडी मस्ट बी यूनिक, because each id will be representing one student, so that id should be unique. ऐसे कुछ रूल्स भी लगते हैं कभी कभी डेटा पे. सो यू हैव टू फाइंड दोज डेटा, फाइंड दोज रूल्स ऑन योर डेटा टू इंश्योर डेटा इंटेग्रिटी. ऐसे नहीं होना चाहिए कि सेम स्टूडेंट आईडी वन का वन स्टूडेंट आईडी वन के आपके डेटा में दो स्टूडेंट्स हैं विथ डिफरेंट इंफॉर्मेशन. राइट. तो ये अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डेटा के लिए कुछ रूल सेट करने पड़ेंगे. राइट. तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे किसी स्टूडेंट के पास फोन नहीं है तो उसके फोन नंबर में कुछ डेटा नहीं होगा, तो वो जो एम्प्टी डेटा है वो आप कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो, उसके लिए कुछ रूल चाहिए. टू मेक योर डेटा, टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, यू शुड सेट सम रूल्स फॉर योर डेटा. मतलब जितने भी स्टूडेंट के पास फोन नहीं है उन स्टूडेंट्स के फोन नंबर के कॉलम में आपको सेम वैल्यू दिखेगी. एक तो 0 यू कैन सेट, राइट, या फिर -1 यू कैन सेट एनी वैल्यू. ओके. बट देयर मस्ट बी सम रूल. ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक स्टूडेंट है जिसका फोन नहीं है तो उसकी जगह पे आपने 0 सेट कर लिया. दूसरा कोई स्टूडेंट है उसका फोन नंबर नहीं है तो वहां पे आपने -1 सेट कर दिया. दूसरे थर्ड कोई स्टूडेंट है उसका फोन नहीं है तो उसकी जगह पे आपने नल स्टोर कर दिया. दिस शुड नॉट हैपन. ओके. दैट इज वाई यू शुड सेट सम रूल कि अगर कोई भी फील्ड एम्प्टी है तो वहां पे मुझे एक रूल बनाना है कि वहां पे मैं -1 स्टोर करूंगा. ओके. सो इट मेक्स योर डेटा, it maintains integrity of your data. Okay. And which ultimately will improve quality of your data. ठीक है. नाउ हमने अभी तक बहुत सारे पॉइंट्स देखे डेटा क्लीनिंग में या डेटा प्री प्रोसेसिंग के डेटा क्लीनिंग स्टेप में. तो ये इतने सारे जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं या इंश्योर करना है, तो ये सारे मैन्युअली करने हैं. Not necessary, because
रियल वर्ल्ड डेटा में ये सारे इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नल वैल्यूज रहेंगे, मिसिंग वैल्यूज रहेंगे, कभी कभी डिस्क्रिपेंसीज रहेंगी, कभी कभी डेटा आपका कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये सारे इश्यूज आपके डेटा से निकालने के लिए बहुत सारे टूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। Okay, so in market we have various tools to take care of your data. तो जैसे डेटा स्क्रबिंग का टूल है, ये क्या करता है, आपके डेटा में कुछ एरर्स होंगे तो वो रिमूव करता है। देन वी हैव मेनी data auditing tools. Okay, so these data auditing tools can discover rules and relationships in your data. और कुछ आउटलायर्स है या कुछ अलग डेटा है जो आपके रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे वायलेशंस ये ऑडिटिंग टूल फाइंड आउट कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दो दो टूल्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं। तो ये जो क्लीनिंग का प्रोसेस है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ योर डेटा, टू मेक योर डेटा कंसिस्टेंट, आपको ये सब मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप टूल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस होना चाहिए इटरेटिव। ऐसे नहीं है कि आपने एक बार में ही डेटा चेक कर लिया और आपको सारी डिस्क्रिपेंसीज मिल गई और आपने आपके डेटा की क्वालिटी एकदम अच्छी कर ली। It will not happen. You have to again and again see your data and you again and again you have to correct your data. Okay, so that data cleaning process must be iterative. Okay, it must be repetitive. Then there are some new approaches, some modern approaches that are used in data cleaning, जैसे for example Potter's wheel. ओके, ये पॉटर्स व्हील क्या है, एक डेटा क्लीनिंग टूल है दैट अलाउज ग्रेजुअल एंड रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन बिल्डिंग। ओके, तो ये टूल है जो आपको डेटा क्लीनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और यू कैन यूज डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस, जैसे एसक्यूएल के एक्सटेंशंस आप यूज कर सकते हो, या अगर आपने एसक्यूएल जैसे कोई डेटाबेस में डेटा स्टोर किया तो वहां पे आप कंस्ट्रेंट दे सकते हो, जैसे यूनिक आईडी, या फिर वहां पे आप लिमिट भी दे सकते हो। तो वो जो अनयूजुअल डेटा है या फिर जो इनकरेक्ट डेटा है वो डेटाबेस में अलाउ ही नहीं करेगा, राइट। सो इट विल मेंटेन क्वालिटी ऑफ योर डेटा। Okay, these are some of the new approaches that are that can be used for data cleaning. Okay, and the last step in data cleaning is metadata updates. Okay, so metadata is nothing but information about information is called as metadata. So all type of data will have a metadata. ओके, तो डेटा, कोई भी डेटा है आपके पास तो उस डेटा का कुछ तो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो। जैसे सिंपली अगर आपके पास रोल नंबर है तो ये क्या हुआ, कुछ इंफॉर्मेशन है या डेटा है, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन आप स्टोर करते हो, जैसे इट इज द यूनिक रोल नंबर गिवन टू एवरी स्टूडेंट, राइट। ये क्या हुआ, उसका मेटा डेटा। ठीक है, so in data cleaning process you should continuously update the metadata to reflect new discovery। ठीक है, तो आपके पास जो डेटा आता है उसके मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं तो नॉट नेसेसरी कि जब आप डेटा देखोगे तो आपको उस डेटा में सब समझ में आएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, एक बार आप डेटा देखोगे तो आपको कुछ चीजें उसके उसमें समझ में आई। ठीक है, तो यू विल फॉर्म अ मेटा डेटा
अगेन नेक्स्ट टाइम आपने वो डेटा देखा, आपको कुछ नया पता चला, यू शुड ऑलवेज अपडेट दैट मेटा डेटा। ओके, तो न्यू जो भी आपको उस डेटा के बारे में पता चल रहा है, that information you should store and you should continuously update that information to keep your data up to date। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर डेटा क्लीनिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके पहले हमने जो सिर्फ देखा मिसिंग वैल्यू, स्मूथिंग वैल्यूज, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग, बट along with that you should take care of all these things while cleaning your data. That is why we always say data pre-processing is very important step in the data mining। okay, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा माइनिंग के जो भी आप एल्गोरिदम अप्लाई करते हो, दैट प्रोसेस इज ओनली 30% एंड योर 70% एफर्ट्स गोज ऑन ओनली डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके, और ये जो क्लीनिंग है वो डेटा प्री प्रोसेसिंग का सिर्फ एक पार्ट अभी अभी तक हमने देखा है। ठीक है, so whenever you are analyzing any data, whenever you want any knowledgeable insights from the data, you have to perform data pre-processing, और ये data pre-processing के ऊपर 70% of efforts लगते हैं, और उसके बाद जो आपका क्वालिटी डेटा प्रोड्यूस होता है, उस क्वालिटी डेटा के ऊपर आप कुछ डेटा माइनिंग का एल्गोरिदम लगा के नॉलेज गेन कर सकते हो। एनी डाउट? Yes, any doubt in today's session? नो मैम, मैम एक बार समरी बता दीजिए वैसे। क्या? समरी बता दीजिए ऑल ओवर लेक्चर की। तो आज हमने क्या देखा? डेटा स्मूथिंग। ओके, डेटा स्मूथिंग क्या है? डेटा स्मूथिंग इज अ पार्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग, राइट? और डेटा क्लीनिंग क्या है? डेटा क्लीनिंग इज वन स्टेप इन डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक स्टेप होता है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में हमने देखा था हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज, उसके बाद हमने देखा कि डेटा स्मूथिंग। ओके, तो स्मूथिंग में सबसे पहले आपको नॉइज आइडेंटिफाई करना होता है, एंड एक बार आपको पता चला कि आपके डेटा में नॉइज है तो आप उसको स्मूथ कर सकते हो यूजिंग वेरियस टेक्निक्स लाइक बाइंडिंग, देन रिग्रेशन और आउटलायर एनालिसिस। ओके, ये तीन टेक्निक्स है डेटा स्मूथिंग के। ठीक है, विथ एग्जांपल हमने देखा कि बाइंडिंग कैसे होता है, और some other techniques are there like regression and outlier analysis using which you can smooth your data। okay, so applying smoothing means you are improving quality of the data। ओके, नाउ दिस मिसिंग, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज और स्मूथिंग, ये क्या हो गए? एक दो पार्ट्स है डेटा क्लीनिंग के। लेकिन जब आप एंटायर डेटा क्लीनिंग प्रोसेस देखोगे तो वो स्टार्ट होता है डिस्क्रिपेंसी डिटेक्शन से। मतलब सबसे पहले हमें डेटा में कुछ अनयूजुअल डेटा है या डिस्क्रिपेंसी है वो फाइंड आउट करनी होती है। उसके बाद इनकंसिस्टेंसी है तो वो डिटेक्ट करके वो करेक्ट करनी होती है। देन वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड टू सेट रूल्स फॉर द डेटा। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिक आईडी होना चाहिए, या कुछ कॉलम है एज जैसा तो उसको आपको कुछ लिमिट सेट करना चाहिए, तो ये क्या है? रूल्स। ओके, तो ये जो प्रोसेसेस होती है नॉट नेसेसरी आपको सब मैन्युअली करनी है, तो मार्केट में उसके लिए बहुत सारे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। यू कैन यूज दोज टूल्स टू improve quality of your data। now the data cleaning process should be iterative। जो भी आप डिस्क्रिपेंसी डिटेक्ट करोगे या इनकंसिस्टेंसी डिटेक्ट करोगे या रूल्स डिस्कवर करोगे, ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए? रिपीटेटिव। टू अगेन improve quality of your data, you should always keep on updating your data as and when you get the new information। okay, and you can use new approaches like potter's wheel tool या declarative language। these are some of the approaches you can use to clean the data। okay, and then last step in data cleaning is metadata updates। okay, so as you get more and more information about the data, you should continuously update the metadata, which will help to speed up the future data cleaning process for the same डेटा स्टोर। मतलब लेट से अभी आप
कुछ रिटेल स्टोर के डेटा पे काम कर रहे हो, ठीक है। जो कुछ भी है वो आपने एनालिसिस कर लिया बाय अप्लाइंग ऑल डेटा क्लीनिंग प्रोसेस। लेकिन जब आप उसका मेटा डेटा स्टोर करते हो तो इसका यूज कब होता है? अगेन यू आर वर्किंग लेट से ऑन द सेम, अभी आप लेट से डी मार्ट पे काम कर रहे हो, डी मार्ट के डेटाबेस पे, तो आपने पूरा डेटा अच्छे से क्लीन कर लिया, सारे प्रोसेसेस अप्लाई कर लिए और उसका मेटा डेटा भी अपडेटेड है। तो ऐसा ही सेम केस जब आपको आएगा, जैसे अभी आप काम कर रहे हो अमेजोन फ्रेश पे या अमेजोन के कुछ डेटा पे, तो ये भी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ठीक है, डेटा तो सिमिलर होगा। तो ये जो पहले वाले केस का मेटा डेटा आपने अपडेट करके रखा है, दैट मेटा डेटा यू कैन यूज फॉर सेम केसेस, राइट। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो वो जो मेटा डेटा का इंफॉर्मेशन है वो आपको सिमिलर केसेस पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। So this is the importance of metadata. So with this, we'll stop here and continue in the next lecture. So your next lecture will be on Monday. Okay. Thank you. Thank you. Attendance ले लिया शिवम.